हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द MCQ सीरीज ऑफ पॉलिटी एंड दीज MCQs आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन M. Lakshmikant book. Now, if you all are preparing for competitive examination, आपको ये चीज़ पता होगी कि लक्ष्मीकांत इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बाइबल ऑफ पॉलिटी। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मे इट बी स्टेट PSC और UPSC, 80 to 90% of the questions in UPSC and around 100% questions जो होते हैं स्टेट PSC के, that comes from this Lakshmikant book. Now the way of completion of this MCQs will be, जैसे चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं लक्ष्मीकांत में, वैसे ही चैप्टर्स के MCQ मैं लेके आया हूँ आपके सामने. And first I'll read the question and then I'll also provide with the explanation part. So if you have studied or read the MCQ book, if you have studied and read the polity book of Lakshmikant, उसके बाद अगर आप इस सीरीज़ को देखते हो तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. Now ये जो क्वेश्चंस हैं, ये these questions I have brought it from the objective MCQ book of Lakshmikant only. So let us start. First I will read the question and then I'll provide you with the answer as well as the explanation. Now before starting, let me give you a brief introduction about the historical background. See, the administrative reforms or the constitutional reforms in the British India can be divided into two periods. सबसे पहला पीरियड तो हमारा था when there was company rule. Now company rule, we know that 1773 का जो चार्टर एक्ट आया था, वहाँ से लेके it extended till 1857, the revolt. After the revolt, you know that the crown, British crown, directly took the responsibility and directly considered India as its own nation. So 1858 से 1947 तक का पूरा रीजन एंड जो भी रिफॉर्म्स थे from 1858 to 1947, these were considered as the reforms under crown rule. अब if I talk about the company rule, we know that regulating act came in 1773. Then other famous act was Pitt's India Act of 1784. Then came the Charter Act of 1813. Then came the Charter Act of 1833. Then ultimately 1853 का Charter Act आया. उसके बाद में 1858 से तो 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. देन केम दी 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म. देन 1919 का हमारा मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. सो ये कुछ बेसिक डिवीजन मैंने बताया आपको ऑफ द वेरियस रिफॉर्म्स दैट वेयर अंडरटेकन. नाउ लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस हियर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. Under the Government of India Act 1919, the Indian legislature was made more representative and the first time it was made bicameral. So bicameral legislature, was it a feature of the 1919 Act? पहला statement तो हमारा ये है. Second statement is, the Government of India Act of 1935 prescribed the federation taking the provinces and the Indian state as unit. Now you can just pause the video and just answer the question. Now I hope कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा. So the correct answer to this question is both 1 and 2 are correct. Now what happened in the Government of India Act 1919? सबसे पहला तो ये मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता था. इट वॉज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब था? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वॉज प्रायर टू 1919 Act देयर वॉज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. Now this council later was abolished and it was divided into two parts. The first part was the upper house, which was known as Council of States, and then there was the lower house. It was known as the Legislative Assembly. ठीक है. and इन दोनों के members were directed through the system, direct elections का system होता था. ठीक है. तो this is a correct statement. Now if we see the second statement, this is also correct. ठीक है. अ प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसमें कि ऑल इंडिया फेडरेशन था, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. सो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ यू विल ऑल्सो नो दैट, आपको ये चीज़ पता होगी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द
ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अगर आपको इस पूरे लेक्चर की PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2. Now let's move to the question number 2. Now, which of the following principal features of the Government of India Act 1990, which of the following are the principles? सबसे पहला है the introduction of diarchy in the executive government of the provinces. Second is the introduction of the separate communal electorate for Muslims. Third is devolution of the legislative authority by center to the provinces. And the fourth is expansion and reconstitution of central and provincial legislature. Now, अगर आपने थोड़े से भी एक्ट्स पढ़े होंगे तो यू विल गेट टू नो दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज नॉट अ फीचर ऑफ द 1919 एक्ट, सो इट वाज अ फीचर ऑफ द 1909 एक्ट, ठीक है, विच वाज आल्सो नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स. द कम्युनल इलेक्टोरेट्स वेयर प्रोवाइडेड इन द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है, तो सेकेंड वन इज नॉट ट्रू. इट इज़ हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. वी विल एलिमिनेट द सेकेंड स्टेटमेंट. तो अल्टीमेटली वी विल कम टू द आंसर दैट इज 1, 3 and 4. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी. अब आई विल गिव यू अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज डायरकी? सो डायरकी, द वर्ड डायरकी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड डाई-आर्क विच मीन्स डबल रूल. ठीक है, द डायरकी meant double rule. Now how double rule? So in the system of diarchy, the provincial subjects were divided into two parts. What these two parts were? सबसे पहला तो था the transferred part. अब the decisions regarding the subjects in the transferred part were taken by the Governor General with the aid of ministers responsible to the legislative council. And the second subject was the reserve subject. As the name suggests कि ये subjects जो थे वो reserve रखे गए थे, reserve by the governor, and इन पे act करता था governor with the aid of his executive council. ठीक है, and this was a system of double rule. ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में द गवर्नर जनरल वॉज एबल टू टेक द डिसीजन विद द एड ऑफ द मिनिस्टर्स विच वेयर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड द रिजर्व सब्जेक्ट्स में डायरेक्टली द गवर्नर जनरल कैन टेक द डिसीजन विद द एड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, एंड द मैटर्स इन द रिजर्व सब्जेक्ट्स वेयर सच दैट कि जो गवर्नर जनरल के पास एक्सरसाइज था टू एक्सरसाइज इट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो था दे वेयर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे. ठीक है, सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ डायरकी. ऑल्सो द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस. एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1919 में विच वेयर ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स, डिवोल्यूशन रूल्स वेयर मेड. ठीक है, डिवोल्यूशन रूल्स वेयर मेड जिसके हिसाब से सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते थे एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते थे. ठीक है ना, तो डिवोल्यूशन रूल्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिवोल्यूशन रूल्स वेयर फर्स्टली गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, तो 1919 एक्ट में डिवोल्यूशन रूल्स आए थे. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 3 and 4. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The first Public Service Commission in India was set up in the year 1926 on the recommendation of Lee Commission on the Superior Civil Services in India. The second statement is the Government of India Act 1935 provided for setting up a Public Service Commission at both provincial and federal level. I hope कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा. So the correct answer to this question is both 1 and 2. ठीक है, द फर्स्ट पब्लिक सिविल सर्विसेज कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1926 ऑन द बेसिस ऑफ ली कमीशन. ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना अगर आपने ऐड नहीं किया है तो. द सेकंड पॉइंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड दिस पब्लिक सर्विस कमीशन में बोथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन थी, एंड देयर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है,
So both of the statements here are correct. Now let's move to question number 4. Now question number 4 is, which one of the following acts provided for setting up of a board of control in Britain through which the British government could fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs in India? Now I hope कि आपने करेक्टली आंसर किया होगा इस क्वेश्चन को. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. एंड व्हाई दिस पिट्स इंडिया एक्ट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दिस एक्ट distinguish between the commercial and the political functions of the company. How it differentiated? The commercial functions were directly under the court of directors, ठीक है, and these political functions were under the board of control. And in this it is explicitly it is given that कि जो board of control था, they fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs. So the correct answer to this question is Pitt's India Act. Now the next question is, we have to match list 1 with list 2. List 1 are the acts and the list 2 में क्या क्या provisions थे. Now the Government of India Act, the Council Acts of 1909, also known as Parliamentary Reforms, the Government of India Act of 1919 and the Government of India Act of 1858. ठीक है, आई होप कि आपने ये करेक्टली आंसर किया होगा. सो द आंसर इज 1909 में मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला कि अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो बी का हमारा क्वेश्चन 5 हो गया. इफ़ आई टॉक अबाउट द 1919 एक्ट, ठीक है, 1919 के एक्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस था. ठीक है, 1935 के एक्ट में द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1919 का एक्ट एंड 1935 का एक्ट. मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना. 1919 के एक्ट में देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस. ओके, 1935 के एक्ट में क्या हुआ था? डायरकी एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, एंड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल जो कि 1919 के एक्ट में था, इट वाज एबॉलिश्ड. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. यही मेन कैच था इस क्वेश्चन का. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी. 3541 इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज, the partially responsible government in the provinces were established by under which of the following acts? So ऑप्शन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 एंड काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1892. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो था प्रोविंसेस, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1919 एक्ट. प्रोविज़न के रिगार्डिंग, जो प्रोविंसेस के रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न थे. सबसे पहले तो था कि डायरकी एट प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड. डायरकी एट प्रोविंसेस. द सेकेंड फीचर वाज कि provincial budget it was separated from the central budget. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोविंसेस वाज असाइंड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ए हमारा करेक्ट आंसर है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, the initial idea of recruitment on the merit principle can be traced to the. Now we all know, अगर आपने एक्ट्स को पढ़ा होगा, कि सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो ये उसी टाइम पे मैकले कमेटी थी, उन्होंने जो था ये इनिशियल आइडिया प्रपोज किया था ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द मेरिट प्रिंसिपल्स. ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई 1853 में एन ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज फाइनली इंट्रोड्यूस्ड. तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द पीरियड of British rule in India, the rules were made under which of the following were known as the devolution rules.
Devolution मतलब क्या? Devolution of responsibilities. And I already told you the 1919 का act finally gave the responsibility to the provinces. ठीक है. How? अभी बताया मैंने. The budget, provincial budget was separated from the central budget. So the devolution rules were finally outlined in the Government of India Act of 1919. That is why 8 का हमारा A is the correct answer. Now next question is, we have to tell which of the following pairs is correctly matched. Now question number 9, let's see. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया होने वाला है क्योंकि इसमें एक अलग फैक्ट मैंने दिया है. नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. इसके साथ क्या दिया है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. नो, नॉट एट ऑल. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1919 के एक्ट में थी, तो ये तो हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, it gave the provincial autonomy, whereas diarchy at center was introduced in the 1935 act. So B is also wrong. C हमारा wrong है. Next comes Government of India Act 1935. Diarchy in states, no, not at all. Diarchy in state was introduced in the Act of 1919. So ये हमारे B, C and D, all the three are incorrect. तो हमारा करेक्टली मैच पेयर क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1892 का काउंसिल एक्ट. ठीक है. हाउएवर दिस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. ठीक है. इट वाज अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन. दिस यू नीड टू रिमेंबर. बट अ बेसिक आइडिया एंड अ बेसिक परफॉर्मर ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शंस was introduced in the 1892 का council acts. Okay, now let's move to the next question. Question number 10 is assertion and reason का question. ऐसे क्वेश्चन में how we have to answer is, सबसे पहले तो हम assertion पढ़ेंगे कि ये the statement जो कि assertion में दिया है, ठीक है, that corroborates to the reason or not. ठीक है. रीज़न जो है हमारा सही है assertion के लिए, assertion जो है वो सही explanation है हमारे रीज़न का. ठीक है. Let's study and now let's read it. Notwithstanding the introduction of the provincial autonomy, the Government of India Act of 1935 retained the control of central government over the provinces in certain sphere. ठीक है. This is correct. Reason क्या है? The governor was required to act in its own discretion in certain matters for which he was to act without ministerial advice under the control and direction of the Governor General. Yes, the statement is also true. Also, गवर्नर जनरल के पास रेसिड्यूरी पावर्स थी. ठीक है. वी नो दैट they were 3 टाइप ऑफ लिस्ट. ठीक है. 1935 के एक्ट में तो सेंट्रल लिस्ट होती थी, सेकेंड was प्रोविंशियल एंड द थर्ड वन was कॉन्करेंट. And the matters which were neither given in the central list nor in the provincial list or in the concurrent list came under the residuary powers. Residuary and the powers regarding residuary list were vested in the Governor General. ठीक है. So in this question the reason is correct for the assertion that is given. So 10 का A हमारा correct हो जाएगा. Let's move now to the next question. Question number 11. In the federation established by the Act of 1935, residuary powers were given to the, I already told you, Governor General के पास हमारी residuary powers होती थी. एंड सेंट्रल लिस्ट की पावर्स किसके पास होती थी? सेंटर के पास. एंड इफ मैं बात करूँ प्रोविंशियल लिस्ट के रिगार्डिंग, पावर्स वेयर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस. इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर प्लस प्रोविंसेस के पास पावर होती थी. तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द लिस्ट आर मेंशन इन शेड्यूल 7. ठीक है. एंड दीज लिस्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एटसेट्रा वेयर टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसको आंसर करना, क्योंकि इंटरैक्शन से यू विल गेट टू लर्न मोर. ठीक है. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ
ये किस कंट्री से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। द DPSPs वेयर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आपको मुझे बताना है कि आयरलैंड ने ये DPSP का को कहाँ से पिक किया था, ठीक है। मतलब सोर्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिफोर आयरलैंड वाज विच कंट्री, ठीक है। जिसने करेक्ट आंसर दिया मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा एंड वो हमेशा के लिए पिन रहेगा चैनल पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिस्ट है, एक्ट्स को मेंशन करना है हमें प्रोविंसेस से। अभी नया एक्ट आ गया यहाँ पे 1858, काउंसिल एक्ट आ गया 1861 का, काउंसिल एक्ट आ गया 1909 का, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1919 का। नाउ लेट अस सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इट अपॉइंटेड अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच was directly responsible to the crown, एंड इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से एक बॉडी बनाई गई जो कि हेल्प करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को। नेक्स्ट कम्स दी 1861 का एक्ट। नाउ 1861 का एक्ट में इट वाज बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, ठीक है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब रिप्रेजेंटेशन किनको किनको दी गई थी 1861 में, ठीक है। द इंडियंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1861, ठीक है। द वाइसरॉय nominated the Indians as a non-official members, and the first 3 non-official members, आप इनके नाम याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। फर्स्ट वाज द राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराज ऑफ पटियाला एंड द थर्ड वन वाज सर दिनकर राव। तो ये 3 Indians were the first who got the representation. Now, Indian Council Act of 1909 was also known as Morley Minto Reforms. ठीक है, ये तो easy है, ये तो आप बता ही दोगे। And the next is Government of India Act. It introduced diarchy in the provinces. So according to this, हमारा जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा B. Let's move to the next question. Now the Government of India Act of 1919 was based on, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट में 10 बार बता दिया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज आल्सो नोन एज द मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एट दैट टाइम मॉन्टेगू वाज द सेक्रेटरी एंड द क्लेम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय एट दैट टाइम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Under which of the following acts was the communal electorate system introduced by the British in India for the first time? The communal electorate was firstly introduced by the Government of India Act, which was also known as Morley Minto Reforms. Now, this was for the first time 1909 में कि communal electorate introduce किया गया था. Again in 1919 electorate was introduced for Anglo-Indians, for Sikhs, यूरोपियंस, इनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1935 में इसको एक्सटेंड करने की भी बात की गई थी एंड एक्सटेंड किया गया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1909 एक्ट, दैट इज मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज व्हाट वेयर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी याद करो मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुई थी, 1858 में फॉर्म हुई थी। एंड इसका वर्क क्या था, इट वाज टू एड एंड सपोर्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1858। सेकेंड इज डायरकी एट सेंटर, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था आपको। एबोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1937। सो बिल्कुल करेक्ट प्रोविजन है। काउंसिल ऑफ इंडिया दैट वाज अबॉलिश्ड, दैट वाज मेड इन द ईयर 1858 वाज अबॉलिश्ड। सेकेंड इज डायरकी एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी इन द स्टेट्स वाज अबॉलिश्ड, जो कि इंट्रोड्यूस कब की गई थी, 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड लास्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1, 2, 3 and 4.
एंड जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि कितना स्कोर हुआ आपका। नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। फीचर्स को वी हैव टू मैच विद द एक्ट। फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिजिड सेंट्रलाइजेशन। नाउ अभी तक के वीडियोस में आप, अभी तक के ये इस पूरे वीडियो में आप इसमें से 3 का आंसर तो आराम से कर लोगे, इससे आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हो। व्हेन वाज द फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1935. Diarchy in provincial government in 1919. Communal representation was introduced in the year 1909. सेंट्रलाइजेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सेंट्रलाइजेशन, रिजिड सेंट्रलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1861. अब सेंट्रलाइजेशन इन व्हाट वेज? ठीक है, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 इज Who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946-1947? So, who was the finance minister? I hope you have tried this question. So, the correct answer is Liaquat Ali Khan. Now, let me tell you some of the portfolios which were in the interim government. So, finance minister was Liaquat Ali. If I talk about Jagjeevan Ram, he was the labor minister. Or labor ministry was under Jagjeevan Ram. If I talk about Dr. Rajendra Prasad, he was the food and agri minister, food and agriculture. If I talk about John Mathai, he was the minister of industries and supplies. Now, if I talk about Sardar Vallabhbhai Patel, then he was Home Minister and Minister of Information and Broadcasting. So these were some of the portfolios you need to remember. एक आइडिया आपको होना चाहिए. You will be easily able to solve the question. Now let's come to the next question. The next question is, which one of the following acts laid the foundation of the British administration in India? So I hope you have tried this question. So the correct answer is Regulating Act of 1773. Centralizing tendencies जो थी वो start हुई थी इस act से. Also Supreme Court was established at Calcutta. This is the most important feature. And Governor General of Bengal was appointed. Governor General was appointed as Governor General of Bengal, and first Governor General of Bengal was Warren Hastings. Now let's move to the next question. Now question number 19. Now we have to match the provisions with the acts. Now designation of Governor General of Bengal as the Governor General of India and his government as the Government of India. Now I already told you 1773 के एक्ट में the Governor General was designated as the Governor General of Bengal. ठीक है, and first Governor General of Bengal was established at Warren Hastings. The Governor General of Bengal became the Governor General of India in the year 1833 with the Charter Act. Also, the first Governor General of India was Lord William Bentinck. And in later stage, during the Government of India Act, the Governor General of India was renamed as Viceroy, and the first Viceroy of India was Lord Canning. Okay, so A का यहाँ पे 1 correct होगा. Now diarchy was introduced in the Indian government. So this was introduced in the year. Then twin feature of all India Federation and provincial autonomy was introduced in the year 1935. Control of the government of India transferred from British East India Company to British Crown. It happened in the year 1858, and diarchy was introduced in the Indian government in the year 1919. So 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पहले का 1 था, यस, सी विल बी द राइट आंसर. Now let us move to the next question. Who among the following was the first law minister of India? It's a pretty easy question. So the first law minister of India was Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है. Now next question is question number 21. With reference to the British period of British rule in India, Indian Statutory Commission is popularly known as. So इसका आप डायरेक्ट नाम तो आपको याद होगा, बट हो सकता है आपको इसका दूसरा नाम विच इज़ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ये आपको ना पता हो. सो द करेक्ट आंसर इज साइमन कमीशन विच वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर 1927. ठीक है. इट वॉज ऑल्सो नोन एज द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. एंड वाई वॉज साइमन कमीशन बॉयकॉटेड? ठीक है. इट वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स. It was completely an all-white commission. Total number of members in the Simon Commission were 7 and all of them were whites. So 21 का D हमारा correct answer है. Now the last question is 22. The question is, during the British rule in India, who was the first Indian to be appointed as a law member in the Governor General Council? So the correct answer is Satyendra Sinha was the first law member to be appointed as a law member in the Governor General Council. And with this हमारा first chapter complete हो गया है. If you want the PDF of this video, you can join the Telegram channel. I will upload the PDF there. And if you like this video, do like this video. Comment section में बताना वीडियो कैसी लगी. And thank you for watching.